So, hello class 7th, welcoming you all back to your chapter. This will be your fourth episode of this particular chapter. है ना पिछले एपिसोड में वी डिड समथिंग रिलेटेड टू द टर्म्स एंड हमने देखा था कि कैसे भी हम ग्रुपिंग कर लें, कैसे भी हम ग्रुपिंग या कैसे भी हम स्वैपिंग कर लें, तो the thing is the answer will be same while we are adding it. So that is what we read about. And last time we देखा था that is what is the commutative property of additions and that is what the associative property of addition is. And in our today's episode, we'll be going to go forward with the swapping the order of things in everyday life. Like whatever the things we do in our everyday life, हम उसमें जो swapping करते हैं हम उसका देखेंगे, right? So there is a question. Manasa is going outside to play, and her mother say, "Wear your hat and shoes." Which one should she wear first? मतलब कि अब वो बाहर जा रही है, अब उसको उसकी मम्मी ने बोला है कि you should wear some shoes or your hat. अब उसमें से पहले क्या पहने? She can wear her hat first and then her shoes, or she can wear her shoes first and then her hat. And Mansa will look exactly the same in both the cases. है ना, मतलब कि चाहे वो पहले जूते पहन ले या पहले वो पहन ले कैप, वो दोनों केसेस में सेम ही लगेगी. Imagine a different situation. Manasa mothers says wear your socks and shoes. अब इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर करता है. अब आप जूते पहनने के बाद सॉक्स नहीं पहन सकते, राइट? या आप बस इसमें एक ही चीज हो सकती है, एक ही ऑर्डर में हो सकता है कि पहले आप जुराबे पहनो देन आप जूते पहनो. So she should wear socks and then shoes. And if she wears shoes and then socks, Manasa feel very uncomfortable and look very different. तो ये आपकी स्वैपिंग जो होती है ऑर्डर के थिंग्स की, वो कुछ चीज में चल सकती है बट कोई, लेकिन कुछ चीज में नहीं, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट होल डिफरेंट सिचुएशन. अब यहाँ पे हम कुछ और एक्सप्रेशन और उनके टर्म्स देखेंगे. So example number 7. अम्मो Ammu, Charan, Madhu, and John went to a hotel and ordered four dosas, and each dosa cost 23 rupees, and they wished to thank the waiter by tipping 5 rupees. So write an expression describing the total cost. So it cost जो है आपकी चार डोसा की कितनी आएगी? 4 into 23. Now can the total amount the tip be written as 4 into 23 plus 5? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 into 23 plus 5? उसको हम कैसे वैल्यूएट करेंगे? तो 4 into 23 plus 5. तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो हम उसमें टेम जो दोनों टर्म है उसको एज एन टेम कह रहा हूँ मैं, दोनों टर्म को एज एन वन लेते हैं, राइट? सो वो हमने देख रखा है पिछली पिछली क्लासेस में. सो इसमें भी वी विल डू द सेम थिंग, राइट? सो वी विल बी टेकिंग 4 into 23 plus 5. Alright, then 4 into 23 become 92 plus 5 97. Thus 4 into 23 plus 5 is the correct way of writing the expression. Now, if the total number of friends goes up to 7 and the tip remains the same, how much will they have to pay? Write an expression for such a situation and identify its top. तो बहुत ही सिंपल है. जब आपका 23 आपने इसको इंटू 4 किया था, you have to just do it into what? Into 7. So it is a simple case. So I'll just do it. 7 into 23 plus 5, that becomes 161. 7 into 23 plus your 5, that becomes, oh, that becomes 166. Okay. और जो टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में वो क्या क्या है? वो हैं टर्म्स 7 into 23 और 5. ठीक है, ये टर्म्स है इसमें. एग्जाम्पल 8. Children in a class are playing fire in the mountain. Run, run, run. Whenever the teacher calls out a number, students are supposed to arrange themselves in a group of that number. Whoever is not a part of the announced group is out. मतलब कि टीचर जो है नंबर बोलेगी, अब उस नंबर से यू हैव टू लाइक मेक अ ग्रुप. लेट्स से 3 बोला तो 3 लोग का ग्रुप बनेगा, 4 बोला 4 लोग का ग्रुप बनेगा, 5 बोला 5 लोग का ग्रुप बनेगा. बट वैसे ही अगर 5 लोग का ग्रुप बोला है तो 5 5 5 करके मान लो 6 ग्रुप बन गए और 3 बच्चे बच गए, जो इस केस में हुआ. तो उसमें जो बच्चा जो उसमें ग्रुप साइज में नहीं आया, उस ग्रुप में जो नहीं बना, किसी का भी उसके साथ ग्रुप नहीं बना, वो लोग आउट हो जाएंगे. दिस इज द गेम दे आर प्लेइंग. So now Ruby wanted to rest and sat on the one side. The other 33 students were playing the game in the class. The teacher called out 5 and one student said Ruby wrote 6 into 5 plus 3 understood as 3 more than 6 into 5. मतलब कि टीचर ने बोला, कितने बोला? टीचर ने बोला कि 5 लोगों के ग्रुप में बनेगा. तो अब क्या हुआ? तो 5 लोगों का ग्रुप ये एक बन गया, एक 2 1 2 3
4 5 6 6 ग्रुप्स बन गए, और जो बच्चे कुछ बच्चे हैं वो 3। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 33 खेल रहे थे। तो 5 ग्रुप बन गए, 6 ग्रुप बन गए 5 लोगों की, तो 6 into 5, रिमेनिंग स्टूडेंट्स 3। तो 6 into 5 is 30 प्लस 3, मतलब कि 3 ज्यादा है 6 into 5 से। मतलब कि 6 into 5 + 3, मतलब 6 into 5 में 3 और। ये नहीं कि 3 3 is greater than 6 into 5, वो नहीं मैंने बोला। ऑलराइट, थिंक एंड डिस्कस व्हाई शी रोट दिस। मतलब अब इसको बोला है कि ऐसा उसने क्यों लिखा। तो इट इज सिंपल थिंग, क्यों? क्योंकि रूबी के पास जो था, यहाँ पे आपके 6 टर्म्स, 6 ग्रुप्स थे, सॉरी टर्म्स कह रहा हूँ। तो 6 ग्रुप्स थे और 5 5 लोग थे, तो दैट इज वाई शी रोट 6 into 5, एंड 3 लोग बच गए थे जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, दैट इज वाई दे बिकम 3। तो अब ये जो एक्सप्रेशन था, इसको अगर हम टर्म में लिखें, सम ऑफ टर्म्स में लिखें, तो 6 into 5 एक हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ मल्टीप्लीकेशन टर्म, एंड 3 अकेला। सो 6 into 5 then plus 3, right? For each of the cases below, write the expression and identify its term। मतलब कि अगर टीचर ने बोला होता 4, लाइक 4 ग्रुप्स बनाओ, मतलब 4 लोगों के ग्रुप बनाओ, तो क्या टर्म, क्या बोलती रूबी, क्या होता? तो रूबी उसने हमको उसका ग्रुप नंबर लिखना है, एंड आई गेस मैं एक्सप्रेशन लिख दिया फिर क्लास साइज। अच्छा, ओके। हाँ, तो मतलब कि हमें उसका टर्म भी लिखना है ना, एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो हमें बोला है 4, है ना? सो 4 आपका, हम ले लेते हैं, इसी के क्लास साइज लेते हैं 33 का। ओके, तो हमको बोला है 4, सो 8 into 4 प्लस 1, है ना? सेम वे आपके जो टर्म्स हो गए यहाँ पे, टर्म्स आपके हो गए 8 into 4 और 1। ठीक है। और अगर टीचर ने 7 बोला होता, तो आपके 7 के ग्रुप बनते, तो वो बन जाते कितने? 4 into 7, मतलब कि 4 ही ग्रुप बन पाते हैं, क्योंकि 33 फिर 35 आता है 7 में, तो वो तो बन नहीं सकता। तो उसमें 5 लोग लेके एक मिनट, 4 into 7 आपका 28 हो गया। 28 + 5 इज व्हाट? 33। सो 28 प्लस 5 विच बिकम्स 23। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, वो हम देख लेते हैं। टर्म्स आपके हो गए 4 into 7 और 5। ठीक है। नाउ देयर इज एग्जांपल नंबर 9। रघु, Raghu bought 1000 kg of rice from a wholesale market and packed them into 2 kg packets. He already had 4 2 kg packets. Write an expression for the number of 2 kg packets of rice he has now and identify the terms। मतलब कि जो रघु के पास है, उसके पास 100 किलो के राइस के पैकेट्स हैं। ठीक है, मतलब 100 किलो उसने राइस खरीदे, और वो सबको 2 2 kg के पैकेट में बांट रहा है। उसके पास 4 2 kg के पैकेट्स ऑलरेडी हैं। अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है, द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ही हैज नाउ आइडेंटिफाई द टॉप, मतलब अब उसके पास जितने हैं उसके बताना है हमने। तो ही हैड 4 पैकेट्स, उसके पास 4 पैकेट्स थे, और जो नंबर है ऑफ 2 न्यू 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस इज 100/2, मतलब कि 2 kg के पैकेट्स को वो और कैसे बांट सकता है? 100/2, है ना? So he did so. The number of 2 kg packets he has now is 4 plus 100/2, मतलब कि 100 को अगर हम 2 से करेंगे तो 50, यानी कि 50 पैकेट्स बनेंगे, राइट? क्योंकि 2 2 kg से 2 into 5 50 इज 100, सो इसलिए ये किया। अगर आपको समझ नहीं आया तो 100/2, क्योंकि 100 kg से उसको 2 2 में बांटना है, सो 100/2 इज 50, यानी कि 50 पैकेट्स बनेंगे, और उसके पास 4 ऑलरेडी हैं। तो 4 प्लस 100/2, यानी कि 4 + 50 = 54, राइट? एग्जाम्पल नंबर 10। Kanan has to pay 432 to a shopkeeper using coins of 1 and 5 and notes of 10 20 50 and 100। मतलब कि वो how can he do it, मतलब कि उसको 432 पे करने हैं। अब उसमें he only has these coins, 1 rupee coin and 5 rupee coin, और उसके पास नोट्स हैं 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का और 100 रुपए का। अब उसको कैसे करना है? अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, है ना? मतलब कि एक से अधिक पॉसिबिलिटीज है, कितने भी कैसे दे सकता है।
या तो वो 100 के नोट दे दे, 4 into 100 नोट्स, जो कि यहाँ पे लिखा है 432, आप 4 into 100 नोट्स दे दो, एक 20 का नोट दे दो, एक 10 का दे दो, और 2 सिक्के दे दो 1 रुपए के। ठीक है। और यानी कि 4 नोट्स आपके 100 के हैं, है ना, एक नोट आपका 20 का है, एक नोट 10 का, और 2 सिक्के आपके 1 रुपए के। तो जो 432 है, आप उसको दूसरे टर्म में कैसे दे सकते हो, 50 का है ना, तो 50 into 8, यानी कि 50 8 रुपए के नोट दे दो, सॉरी, 8 50 रुपए के नोट दे दो, उल्टा बोल दिया मैंने, 8 50 रुपए के नोट दे दो, एक 10 रुपए का नोट दे दो, 4 5 रुपए के सिक्के दे दो, और 2 1 रुपए के सिक्के दे दो। मतलब कि 8 नोट 50 के, एक नोट 10 का, 4 सिक्के 5 के, और 2 सिक्के 1 के, है ना। यही है। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द टू एक्सप्रेशंस अबव, मतलब कि अब जो ये दो एक्सप्रेशंस थे, इसमें से टर्म हमें निकालने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इफ आई राइट, आई गेस यहाँ पे भी चल जाएगा ना, अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ तो आई राइट ओवर हियर ओनली। ठीक है, टर्म्स इनके इसके आगे ही लिख देता हूँ मैं। सो फर्स्ट में यहाँ पे आपका बन जाएगा, एक तो ये 4 into 100, प्लस में आपका 1 into 20। ठीक है, और आपका और क्या हो जाएगा, 1 into 10, 1 into 10, और आपका ये 2 रुपए वाला भी हो जाएगा, मतलब 1 रुपए वाला भी हो जाएगा, तो 2 into 1। यहाँ पे गैप दे देता हूँ। और अगर हम इसका लिखें टर्म, तो यहाँ पे बेटा मेरा 8 into 50 हो जाएगा, 8 into 50, कॉमा 1 into 10, कॉमा 4 into 5, और अगेन 2 into 1। ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मैंने देखा भी नहीं इसको लिखते हुए, 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका इसका एक्सप्रेशन मैंने जो इसका टर्म से मैंने यहाँ पे ही लिख दिए। Can you think of some more ways 432 can be given to someone? Obviously there are more ways। अगर आप 40, मतलब 432 को और भी अलग अलग तरीके से देख सकते हो, जैसे कि आपने 100 के 3 नोट दे दिए, 50 के 2 नोट दे दिए, 20 का एक, 10 का एक, 2 रुपए दे दिए ऐसे कॉइन 1 1 रुपए के, वैसे भी कर सकते हो, है ना। या तो बहुत मल्टीपल वेज, अगर और नीचे जाओगे तो 20 में भी दे सकते हो, 10 में भी दे सकते हो, जैसे कि आप 40 नोट 10 के दे दो, है ना, एंड देन 40 नोट 10 के दे दो, 3 नोट 10 के दे दो, और 2 सिक्के दे दो, ऐसे भी कर सकते हो। ये आप लोग बहुत अच्छे से सोच सकते हो, और क्या क्या एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हो, और किन किन तरीके से आप 432 रुपीज एज एन पे कर सकते हो इन मेनी 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 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स, मतलब कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, तो अभी देख लेना। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। Here are two pictures, which of these two arrangement matches with the expression 5 into 2 plus 3? तो 5 into 2 plus 3 के साथ कौन सी अरेंजमेंट मैच करती है इससे, वो हमें बताना है। तो 5 into 2 plus 3, तो 5 into 2 plus 3, यहाँ पे देखो 5 हैं, जिसके दो दो ब्लॉक है, क्या दो, 5 वो है, उसके दो दो वो है, तो 5 into 2 plus 3। और यहाँ पे क्या है, जो 5 है, 5 into 2, यानी कि 5 दो के हैं, और 3 भी काइंड ऑफ आपके दो दे दिए, तो इसमें से मेरे ख्याल से ये वाला सही है ना। सो इसका ही अगर हम टर्म ले लेते हैं, एक्सप्रेशन ले लेते हैं इसके सम ऑफ टर्म्स में, तो 5 into 2 plus 3, यानी कि 10 + 3, यानी कि 13 होंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 + 3 13 है, लेकिन यहाँ पे 10 + 6 हो जाएगा 16, तो दिस इज करेक्ट, जो कि मैंने बोला ही था। तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी अंडरस्टूड कर सकते हो कि 3 ज्यादा है 5 into 2 से। 5 into 2 इज व्हाट, 5 into 2 इज योर 10, सो 10 इज मोर, मतलब कि 3 ज्यादा है 10, यानी कि 10 + 3 इज 13, तो मतलब कि 10 और 3 और। which describes the arrangement on the left, यानी कि this one only, ये वाला ही सही है। Alright, what is the expression for the arrangement in the right making the use of the number of yellow and blue squares? मतलब कि जो हमारा इसमें बन रहा है, उसमें क्या है, ये वाला जो येलो और ब्लू, यानी कि राइट वाले में, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो ब्रैकेट का यूज करके, तो 2 into 5 + 3 करा है उसने, है ना। क्या किया है उसने, 2 into 5 + 3 किया है, यानी कि अब उसमें क्या किया है, 2 into 5 + 3, यानी कि 2 into 5 भी हो रहा है, और 2 into 3 भी हो रहा है। तो इस अरेंजमेंट से आप 5 + 3 प्लस 5 + 3 कर दो, यानी कि 5 को आप 2 बारी, 3 को आप 2 बारी करो, और 5 into 2 और 3 into 2 करो,
तो इसमें जो आपका 13 जो यहाँ पे आपका टर्म बन रहा है वो नहीं बनेगा इसमें, बट आपका 16 बनेगा, क्योंकि आपका 10 तो है ही और 3 3 दो बार ही हो रहा है, दैट इज योर मेकिंग योर नंबर एज 16। ऑलराइट, तो ये था आपका। इसके बाद ये आपका फिगर इट आउट है, एंड देयर इज सम मोर क्वेश्चंस फॉर रिमूविंग ब्रैकेट्स। वो भी हम अभी वाले कर में कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में करें। आई गेस मे बी वी हैव सम वॉट टाइम, बट वी मे बी नॉट कैन कंप्लीट, लाइक हम ये सारा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आई गेस। सो आई लीव दिस फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। ये जो फिगर इट आउट है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में, आई गेस एपिसोड नंबर 5 में। ठीक है, अगर ये थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा होगा टू कंप्लीट इट इन जून ओनली, आई लाइक मे बी एक्सटेंड सम डेज ऑर्डर। अगर आपका इसके साथ वाला जो भी मेरे ख्याल चल रहा होगा, मेरा ही क्लास चल रही होगी, तो आई मे एक्सचेंज और चेंज कुछ कर लूंगा डे ऑर्डर के। उसमें थोड़ा मैं चेंज करके एक आधा एपिसोड एक्स्ट्रा चल के थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दूंगा मैं, मे बी बिकॉज व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस वाज लेसर एपिसोड्स, बट आई कैन से कि थोड़ा ये ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो फॉर नाउ आज हमने स्वैपिंग देखी कि हम रियल लाइफ में कैसे करते हैं, और कैसे एक्सप्रेशन और टर्म्स को हम एज एन इस फॉर्म में भी लिख लिख सकते हैं। राइट, इसमें हमने क्लास का, नोट्स का और इस अरेंजमेंट का एग्जाम्पल से किया। राइट, आगे का फिगर इट आउट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट एपिसोड में होगा। So till then, thank you and bye bye you all. We'll meet you all in the next class. Till then, bye bye and do your work. Goodbye.